हेलो फ्रेंड्स। बेसिकली आफ्टर ग्रेजुएशन, लाइक अगर आपका बीसीए हो चुका है, बीसीएस हो चुका है या इंजीनियरिंग हो चुका है, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर वेलकम फॉर आवर इंटर्नशिप प्रोग्राम। बेसिकली इंटर्नशिप क्या होता है? जो भी कोई इंडस्ट्री है जिसके अंदर कॉलेज के स्टूडेंट जाके लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, और कंपनी गिव्स देम द ज्वाइनिंग लेटर एंड द completion certificate after minimum 3 months or maximum 6 months. So it is called as internship. So what is a valid internship? Basically valid internship मतलब क्या? आपको एक्चुअली उस कंपनी में जाके प्रोजेक्ट बनाने हैं. So as a Peak Process Solutions Private Limited, we also conducting this internship program. Basically, we have the openings as an intern for different technologies like Java, Python, PHP, a full stack developer. Second is the Angular or React. The student should able to develop the project in Angular or React. If he or she is good in full stack, it's best. Then otherwise, Min or Mern stack. There is a MongoDB, Express, Angular, and Node.js. This combination is also good. Or MongoDB, Express, React, and Node.js. So they should able to develop the one page small applications for the clients. There are different domains for the client categories. For example, pathologies, for example, hospitals, education domain, colleges, training centers. These all are the clientele parts of our peak process. For example, there is a gym. So gym is a one domain. Health is a one domain. So in that we have the different projects as well as the clients. AI and ML. If the student have some knowledge about the AI and ML, data science and data analytics, openings for the interns in the data science and data analytics, web application और the app developments. मतलब कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको वेबसाइट डेवलप करना आती है, वेब बेस्ड सॉल्यूशन बनाना आता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं दे आर गुड इन द मोबाइल ऐप डेवलपमेंट्स, तो उनके लिए भी हमारे पास एज ए ओपनिंग एज ए इंटर्न है. डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग में कैनवा आना चाहिए, उनको पोस्ट क्रिएट करना आना चाहिए, पोस्ट को पेड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, गूगल एडवर्ड्स करना आना चाहिए, और छोटी मोटी वेबसाइट बनाना भी आना चाहिए, वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना आना चाहिए. तीसरा है दैट इज इवेंट मैनेजमेंट और एचआर और एडमिन. कुछ एमबीए और बीबीए स्टूडेंट भी हम ले रहे हैं, दे शुड एबल टू डू सम इवेंट हैंडलिंग और कंडक्टिंग सम सेमिनार्स और सम एचआर एक्टिविटीज और एडमिन एक्टिविटीज. सो ऑल इंटरव्यूज आर बिफोर 25 नवंबर. सो आपको जब भी टाइम मिले आप हमारी कंपनी के अंदर वॉक इन के लिए आ सकते हो. द टाइम आर आफ्टरनून सेशन, दैट इज बिटवीन द 2 to 6. So you can visit with your resume, that is a hard copy print out, कॉलेज आईडी अगर होगा आपके पास, और कोई पासपोर्ट साइज फोटो. आप वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हो, उसमें भी एक इंटर्नशिप नाम का ऑप्शन है, उस पर आप अप्लाई कर सकते हो. वेबसाइट इज peakprocess.com, आपको मोबाइल नंबर दिए गए हैं. सो बेसिकली व्हाट दिस इंटर्नशिप इज ओपन, and if your resume gets shortlisted or selected, then the phone or some messages from the company will be given to the students, and student have to apply for that. They have to send their resumes and details or the details and come for the interview. The interview is basically of two types. One is the technical interview and then machine test, and then after that there is a HR interview. If the candidate gets selected, then at the same day, he or she get the joining letter from the company as an intern. And after 3 to 6 months, if she or he able to develop the client-based projects, then automatically the candidate will get the stipend also. So it is very good opportunity for all the MCA and MCS students to join this activity. अभी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इस एक्टिविटी के दौरान क्या करना है. मतलब स्टूडेंट को जो सवाल होता है कि सर एक्चुअली अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ तो एज ए इंटर्न मेरे कुछ रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होते हैं. सो बेसिकली हमने क्या किया है, दैट इज एट द पिक प्रोसेस हम पहले क्या करते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट जब लेंगे कोई क्लाइंट का, तो पहले दैट इज अ प्री रिक्विजिट फेज होती है. तो उसमें दिखाया गया है जैसे आइडेंटिफाई द बिजनेस नीड्स एंड गोल्स, डिफाइन प्रोजेक्ट स्कोप एंड
ऑब्जेक्टिव्स, कंडक्ट फिजिबिलिटी स्टडी। तो ये सब जब पहला प्रोजेक्ट हम लेंगे तब, तो प्रोजेक्ट लेने के बाद कुछ स्टेप शुरू होते हैं, दैट इज अ प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग फेज। जब प्रोजेक्ट आ गया तो उसके लिए काम शुरू करेंगे, डिफाइन प्रोजेक्ट स्कोप। इसमें आता है बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन। इसमें सीनियर और आपके टीम लीडर्स आपको बहुत सारी हेल्प करते हैं, जिससे पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट का डेवलप होता है। आइडेंटिफाई एंड दैट इज एसेस एक्सेस रिस्क, डेवलप रिस्क। रिस्क मतलब रिस्क मैनेजमेंट आपको करना है, प्रोजेक्ट का स्कोप बनाना है, प्रोजेक्ट का क्लाइंट कौन है उसके बारे में, और थोड़ा टेस्टिंग का क्राइटेरिया कौन सा करना है, ये सभी आप डिफाइन करते हो। आगे जाके डिजाइन फेज, जिसको हम बोलते हैं यूआई यूएक्स करना है। उसके पहले हम थोड़ा उसका डीएफडी ईआरडी लेकर क्लास डायग्राम यूएमएल डायग्राम डिजाइन करते हैं। देन देर इज अ राइट सम दैट इज अ कोडिंग भी करना है। तो कोडिंग जब करते हो तो आप उसमें एमवीसी आर्किटेक्चर हमने प्रेफर किया है। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो एब्स्ट्रैक्ट आपको डिफाइन करना है। एब्स्ट्रैक्ट के बाद दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डीएफडी ईआरडी यूएमएल डायग्राम्स, टेबल डिजाइनिंग, प्राइमरी की नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट एनएफ सेकंड एनएफ थर्ड एनएफ तक करना है। कभी कभी डीनॉर्मलाइज भी करना पड़ता है। और ये सभी यूएमएल डायग्राम होने के बाद आपको टेबल डिजाइन करना है। टेबल डिजाइनिंग करने के बाद आप यूआई यूएक्स डिजाइन करते हो, और यूआई यूएक्स होने के बाद आपके दैट इज सर्वर प्रोग्रामिंग के जो फाइल्स होते हैं, जैसे आपके स्प्रिंग बूट के फाइल है या पाइथन के फाइल है या पीएचपी के फाइल है, तो वो आप फाइनली बनाते हो। तो इस तरह एमवीसी आर्किटेक्चर हम बनाते हैं। तो आफ्टर दैट सम डिप्लॉयमेंट या टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट फेज है, उसको मेंटेनेंस फेज भी होता है। तो ये सभी फेज के द्वारा कोई भी आपका जो प्रोजेक्ट होगा, तो इंटर्न जब भी प्रोजेक्ट पे होगा, तो व्हाट इज द हायरार्की ऑफ द बेसिकली प्रोजेक्ट। सो देर आर सम प्रोजेक्ट लीडर्स, then team leaders, under them there are some 2 to 3 juniors, and then the minimum under one team leader there are 4 interns। तो एक टीम लीडर के अंदर 4 इंटर्न हम ले रहे हैं। सो देर आर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे हायरार्की हमने बताई। अभी जो बोला मैंने, टीम लीडर होता है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, उसके अंदर पे फ्रंट एंड डेवलपर्स है, बैक एंड डेवलपर्स है, और बाद में फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस डिजाइन करने वाले लोग होते हैं। देन क्वालिटी एश्योरेंस है, या उसको हम थर्ड पार्टी ऑडिटर भी कहते हैं, या कभी कभी टेस्टिंग वाला भी काम ये काम कर लेता है। डिजाइनर्स है, तो ये आर कंटेंट राइटर। तो इससे आपका पूरा जो टीम है वो डेवलप होता है। तो देखा गया है कि 7 से 8 लोग एक प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं। और इसके बाद अलग अलग, जैसे डेवऑप्स इंजीनियरिंग है, या आपका वेब डेवलपमेंट है, या एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे ये बहुत सारे हमने, जो भी क्लाइंटल हमारा है तो उसका पूरा किस टाइप के प्रोजेक्ट्स है उसकी लिस्ट दी है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो दैट इज वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, एआई एमएल, डेटा एनालिटिक्स के कुछ प्रोजेक्ट हैं, और डेटाबेस मैनेजमेंट के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। और इसके अंदर दैट इज एक्टिविटीज। तो अभी एग्जैक्टली एक्टिविटी क्या करनी है, अगर वेब डेवलपमेंट है तो उसमें क्या करना है, तो उसे HTML CSS या जावास्क्रिप्ट के पेजेस बनाने, क्रिएटिव दैट इज अ क्रिएट रिस्पॉन्सिव लेआउट्स, इम्प्लीमेंट दैट इज अ पेमेंट गेटवे, कभी कभी कोई क्लाइंट मांगता है, डेवलप ए यूजर ऑथेंटिकेशन सिस्टम, पासवर्ड यूजर डाल के, इंटीग्रेट ए थर्ड पार्टी एपीआई, एंड कंडक्ट वेबसाइट टेस्टिंग डीबगिंग, जैसे रेस्ट एपीआई टेस्ट करते हो, क्रिएट अ वेब स्क्रैपर, या डेवलप ए प्रोग्रेसिव वेब एप्स। तो ये सभी चीज़ें एज ए वेब डेवलपर आपको करनी है। अगर आप मोबाइल में हो तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के इंटर्न के लिए ये एक्टिविटीज़ है। तीसरा है जैसे डेटा साइंस है, डेटा एनालिटिक्स के भी कुछ इंटर्न्स है, उनके लिए कुछ काम दे, साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ मशीन लर्निंग है, और नेटवर्क या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, और सबसे मेन जो अभी मैंने बोला डेटाबेस, या फिर दैट इज एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग, या इंटर आईओटी के अंदर भी हमारे पास कुछ इंटर्न्स काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब फ्रंट एंड बैक एंड मतलब स्टेप कैसे होते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट है, फुल स्टैक डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, डीबगिंग है। तो ये सभी एक्टिविटी एज ए इंटर्न उन इंटर्न को करनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटर्नशिप एट द पीक प्रोसेस। और इसके लिए हमने 2 टेस्ट रखे। द फर्स्ट इज दैट इज ओरल इंटरव्यू। उसके अंदर टेक्निकल सवाल पूछे जाएंगे। क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं उसके सब सैंपल भी मैं बता रहा हूँ। जैसे व्हाट इज अ स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है समझाओ, जैसे ओवरलोडिंग क्या होता है, इनहेरिटेंस कितने टाइप के हैं, कौन से इनहेरिटेंस जावा में चलते हैं, कौन से इनहेरिटेंस पाइथन में चलते हैं, सुपर कीवर्ड क्या करता है, जैसे कंस्ट्रक्टर क्या है, डिस्ट्रक्टर क्या है, जावा में डिस्ट्रक्टर क्यों लिखना नहीं पड़ते हैं, या जावा का फाइल हैंडलिंग कैसे काम करता है, रिकर्शन क्या होता है, कभी कभी डेटा स्ट्रक्चर के कुछ कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं,
डेटा एनालिटिक्स क्या है। तो ये हर चीज मतलब सर्चिंग सॉर्टिंग की टेक्निक क्या है, कब मेन टॉपिक है आपके फाइल हैंडलिंग, जेडीबीसी, जेएसपी, सर्वलेट, या स्प्रिंग बूट, या कोई एमयूसी आर्किटेक्चर यूजिंग कोऑर्डिनेटर। तो ये जो जो आपको आ सकता है वो सभी चीजें आपको थ्योरेटिकल भी आनी चाहिए और प्रैक्टिकल भी आनी चाहिए। तो थ्योरेटिकली एक ओरल इंटरव्यू रहेगा और एक मशीन टेस्ट। अभी मशीन टेस्ट में आपको क्या पूछा जाएगा, दैट इज बेसिकली अ क्रूड ऑपरेशन। तो कोई भी क्रूड ऑपरेशन मतलब क्लाइंट क्लाइंट से आपने डेटा सबमिट किया सर्वर को, या सर्वर से डेटाबेस को चला गया, और डेटाबेस में समझो आपने 10 फॉर्म सबमिट किए, तो एडमिन देखना चाहता है कितने फॉर्म आए। तो अगेन वो रिट्राइव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, और वो देखेगा कि कितने सारे एप्लीकेशंस आए हैं। तो ये सब पूरा सिस्टम करके दिखाना है, दैट इज अ कॉल्ड एज क्रूड ऑपरेशन। तो ये इस तरह का आपका टेक्निकल टेस्ट एंड मशीन टेस्ट होगा। तो जिसके अंदर आपको सिलेक्शन होता है तो आपको उसी दिन ज्वाइनिंग लेटर कंपनी की तरफ से मिलेगा एज अ इंटर्नशिप ज्वाइनिंग लेटर। और अगर आप 3 महीने या मैक्सिमम 6 महीने करते हो तो उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। और आपको इस दौरान कम से कम 3 प्रोजेक्ट, मैक्सिमम 10 प्रोजेक्ट तक भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो कोई डोमेन फिक्स नहीं है, आप कोई भी डोमेन में मूव हो सकते हो। जैसे मोबाइल एप्लीकेशन है, या कोई जाता वेब डेवलपमेंट है। तो अलग अलग डोमेन और अलग अलग क्लाइंट्स हमारे पास है। तो आप ऑल स्टूडेंट्स आर वेलकम टू गिव दैट इंटरव्यू और टेस्ट फॉर द इंटर्नशिप। थैंक यू स्टूडेंट्स।